Gupta is a psychiatrist practicing in Ludhiana city for the last 33 years. He did his graduation from Medical College Jammu and post-graduation in psychiatry from PG. The August audience present here. Today I, Aarti, And I, Ayushi, are your host for the full session of Human Values in Education. The eminent speaker of today's session is Dr. Rajiv Gupta. Dr. Rajiv Gupta is a reputed psychiatrist practicing in Ludhiana city for the last 33 years. He did his graduation from Medical College Jammu and post-graduation in psychiatry from PGI Chandigarh. He has also served DNL Medical College and Hospital and Guru Ramdas Medical College, Amritsar as a professor of psychiatry. He has authored 2 books and many research papers for national and international journals. He is chief editor of monthly medical magazine named Meditrack, and he is founder of Manas Foundation, which is non-profit charitable NGO. The NGO Manas is dedicated to serve humanity selflessly, passionately, with commitment of betterment of mental health of community by creating awareness, alleviating misconceptions and providing psychoeducations through counseling services along with biological approach. Dr. Rajiv Gupta regularly delivers talks in different forums on various psychological and behavioral problems. His holistic approach to psychiatry makes him different from the rest. Today, he shall be enlightening us on the topic modern day challenges and value conflicts. Now let us invite Dr. Rajiv Gupta with a round of applause. Good afternoon, everybody. See, आज ना ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈਗਾ। See, आज वैल्यू सिस्टम ਕੀ ਹੈਗਾ, ठीक है? और जो टाइम चल रहा है आज का सिलेबस फॉर स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज वास्ते, फैमिली मेंबर्स वास्ते, किसी वास्ते भी सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। मेरा एक्सपीरियंस की है, मैं आमतौर पर सवेर से लेकर शाम तक जो पेशेंट देखता वो पेशेंट किसी न किसी मानसिक समस्या के शिकार होंगे। पिछले 40 साल तो जो पेशेंट मानसिक समस्या के शिकार होंगे हैं मैं राउंड देखता, चाहे डिप्रेशन के होंगे हैं, टेंशन के होंगे हैं, अग्रेशन के होंगे हैं, एडिक्शन के होंगे हैं, शराब के कारण होंगे हैं। जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। जिले स्कूल का फाइनल एग्जाम आने वाला होता है, रिजल्ट निकलते हैं तो हर स्टूडेंट सोचता है, पेरेंट्स सोचते हैं तो उसी बच्चे को की करेंगे। कोई सोचता है मैं आर्ट्स लेनी है, कोई सोचता है मैं साइंस लेनी है, कई बच्चे सोचते हैं ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ाई करनी है। सो लाइफ के हर मोमेंट पे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸੀजन ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸੀਜਨ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤੇ ਟਿਕਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, तो तो लोग दसे तुम कितने जाना है, ठीक है। सो एवरी टाइम इट इज योर पर्सनल डिसीजन। तो जिसने टिकट ले ली ट्रेन पे बैठ के देन जाना कितने है ट्रेन ने डिसाइड करना है। सो सिमिलरली लाइफ के विच देयर आर मेनी मोमेंट्स व्हेन यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू हैव समथिंग बट सर्कमस्टांसेस डू नॉट फेवर। और यू वांट टू हैव समथिंग कि बच्चा अपने पिंड तो शहर आता है, यूनिवर्सिटी उन्हें एडमिशन ले ली, शाम को देखते भी 4-5 मुंडे शराब पीते पे हैं या नशा कर रहे हैं, ना तो वो मुंह शराब आंदा है, ना वो मुंह कोई सिगरेट लगाता, ना ही कोई हीरोइन देता या नशा करता है। बच्चा आपे जाता है, आपे देखता बाकी की कर रहे हैं, वो आपे डिसीजन लेता है कि वेदर आई शुड टेक ड्रग्स
I should take alcohol, I should smoke, I should not smoke. ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ 15-20 ਐਡਿਕਟ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਐਡਿਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ, ਸੀ ਉਹ 60 ਇਅਰਸ ओल्ड, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਾਈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ 130 ਫਾਸਟਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ, 110 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਰੋਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹਫ਼ਤੇ में एक बार करके बंद कर देना काम चलेगा? She was running a school, educated lady. मैं कहा जिस तरह है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਥੋੜਾ सा मैं कभी ले लिया करेंगे। ठीक है, सो ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਮੰਗੇ ਮੋਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਈ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਅ ਡਰਗ ਐਡਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀਰੋਇਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਦਿੰਦਾ, ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੂਬ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੂਡ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਫੂਡ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਫੂਡ, ਐਂਡ ਯੂ ਨੇਮ ਅ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਿਸ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੀ ਪਾਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਵੇਟ ਪੈਸੇ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਹੂ ਡਿਸਾਈਡਸ? ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੜੋਸੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਖਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿਕਨ ਖਾਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਿਕਨ ਖਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਸ਼ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਦਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਟੋਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸੀਜਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਦਮੀ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ हैं ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਪ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਲੀਨਿਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੜਦਾ ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਮਾਂਡ ਬੜੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, 25-26 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸਲੇ ਮਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਬੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Now this boy started saying ਕਿ ਮੈਨੂੰ iPhone 6 ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆਲਮੋਸਟ 65,000 70,000 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ iPhone 5 ਦਾ ਦਿੱਤਾ, 24-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ 26-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 4 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਹੈਂਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਐਂਡ ਹੀ ਡਾਈਡ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮ
ਅਸੀਂ ऐसे ही डिमांड्स करते हैं अपने आप से अपनी फैमिलीज से जिहड़ी वो फैमिलीज कोप अप नहीं कर पाती। दिस वाज वन इंस्टेंस पेपर से खबर आई सी इज हार्डली 1 month बैक बच्चे की अनरीजनेबल डिमांड के नाल फैमिली दे विच अननेसेसरी क्राइसिस आ गई सी। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੋਚੀਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰ ਖੋਲੋ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਖੋਲ ਲਓ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। एक्सीडेंट हो गया 2 बंदे मर गए किसी बच्चे चुप के लै गए लड़की का रेप हो गया यानी उत्थे कोई कम चंगी खबर नजर ही नहीं आएगी। जो बंदा रोज अखबार पढ़ता है वो सोचता था नहीं लुधियाने की हो गया हथियारी इलाके में क्राइम ही ना बढ़ गया। लेकिन लाइफ का दूसरा एस्पेक्ट होंगे जिसे हजारों लोग अच्छे काम कर रहे हैं शहर के देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं देयर आर स्टूडेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं पेरेंट्स अपने दफ्तर जाते हैं मेहनत करते हैं बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं। सो देयर आर लैक्स ऑफ पीपल हु आर लिविंग ए वेरी डिग्निफाइड वेरी ऑनरेबल एंड ए वेरी हार्ड वर्किंग लाइफ। लेकिन कभी भी मीडिया उस पर फोकस नहीं करता। देयर आर लैक्स ऑफ मदर्स इन द कंट्री कि बच्चे ने मैट्रिक पढ़ना जी बच्चे ने 11वीं में ध्यान देना 12वीं देनी है 4 बजे उठानी है 3 बजे उठानी है काफी उठानी है बच्चों को स्कूल लैके जानी है मदर्स घर लैके जानी है। लेकिन वो जी हार्ड वर्क की स्टोरी है जी गुड स्टोरी है उसका कोई सोसाइटी के अपने फोकस नहीं होंगे। तुम कभी अखबार खबर पढ़ी है कि पंजाब के फलाने गुरुद्वारे के हजारों लोग रोटी खिलाई जाती है जिन्हें लेबर क्लास पंजाब तो बाहरों आती है। चंडीगढ़ रोड से एक यूएस का बिजनेसमैन है उन्हें एक सोसाइटी बनाई हुई है उन्हें दोराल होम भी बनाया बड़ा रिसेंटली उत्थे 1 रुपए की रोटी की थाली मिलती है पिछले 50-30 सालों तो और हजारों बंदे उत्थे आके रोटी की थाली खाते हैं और जिसमें रोटी खान आते हो उत्थे कंपलसरी है कि पहला हाथ धो के आओ उत्थे नेल कटर पेट में भी कट के आने लगे नेल्स भी कट के आने लगे। लेकिन ये भी पॉजिटिव स्टोरी है लाइफ की जी अच्छी स्टोरी हैगी है कि मीडिया से फोकस नहीं करता वो हमेशा एक नैगेटिव स्टोरी की लाइफ की हैगी है उन्होंने फोकस करेगा। जिसले असीं यंग होंगे हैं जिसले असीं अपने किसी प्रोफेशनल बिजनेस होंगे हैं साडा हमेशा ध्यान होंदा है उन्होंने लोगों के पासे जिहड़े गलत काम करके अगे जा रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर आदमी पूछता है किसी ने सीढ़ी चढ़नी हुए या छत तो सलाम लगानी हुए ज्यादा टाइम नहीं करता है। हाँ जी चलाने वाला ही देता है। अगर सीढ़ी चढ़ने तो कितना टाइम लगता है वो ज्यादा टाइम लगता है। सो अगर तुम जिंदगी के राइट डिसीजन लेना है उन्होंने ज्यादा मुश्किल है। अगर तुम जिंदगी के गलत डिसीजन लेना है वो तो बड़ा आसान काम है। सो जी वैल्यू सिस्टम हैगी है इट ऑल्सो डिपेंड्स कि यू आर टेकिंग ए राइट डिसीजन और यू आर टेकिंग ए रॉन्ग डिसीजन इन योर लाइफ। मैं हमेशा जो मेरे क्लिनिक इश्यूज होते हैं आई टेल माय पेशेंट्स कि जी सड़क पर तुम अपनी गड्डी लैके जाओगे वही डेस्टिनेशन आएगी। अगर तुम जाना है दिल्ली तो सड़क लगी पठानकोट की तो दिल्ली कभी नहीं आएगा। तो बेस्ट गड्डी है यू आर द बेस्ट ड्राइवर तो जिन्हें मर्जी जोर लगाओ तुम इतने गायत्री मंदिर को जितना मर्जी पाठ को दिल्ली नहीं आ सकता कभी। सो दिल्ली जाने से की करना पड़ेगा कि रोड आने के लिए दिल्ली रोड आने के जो तो अपने डेस्टिनेशन है लाइफ का। सो लाइफ के दो किस्म की रोड होंगे हैं दो किस्म के ऑप्शन होंगे हैं there is a right option there is a wrong option because see जरा बच्चा ग्रो कर रहा है स्कूल स्टूडेंट है उन्होंने लाइफ बड़े डिसीजन लेने हैं। आजकल एक बड़ी कॉमन इश्यूज फैमिली चल रहा है स्कूल कॉलेज चल रहा है लड़के लड़कियों की दोस्ती साडे कोल बड़े यंगस्टर्स आते हैं डिप्रेशन के नाल दोस्ती टूट गई तो डिप्रेशन अगर दोस्ती जुड़ गई तो डिप्रेशन
अंकल मेरी दोस्ती हो गई है, उसने मेरे व्हाट्सएप से हटा दिया मुझे। मेरा ख्याल न्यूक्लियर फैमिली की परेशानी भी होती होनी, जिन्नी आजकल किसी को फेसबुक पे हटा दो जी, वो काफी पैसे आ जाती है। और बच्चे क्योंकि हम स्मॉल फैमिलीज हो गई है, हार्डली देयर आर 4-5 मेंबर्स, वो चिल्ड्रन कम्युनिकेट विद देयर पेरेंट्स। बच्चा स्कूल कॉलेज तो आएगा, अपना मुंह बना के बैठा जाएगा, तो मदद कहता है आप एक काम करिए, मेरी गर्लफ्रेंड को फोन करिए और फेसबुक पे मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। ठीक है जी। सो किसी भी यंगस्टर वास्ते अगर सी इफ यू शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ काफी यंगस्टर बच्चे आने शुरू हो जाते। अंकल मुझे अच्छा बैंड नहीं मिला, मेरे तो बहुत बेइज्जती हुई क्लास में, बाकी बच्चों को तो बड़ा अच्छा फ्रेंडशिप बैंड मिला, मुझे सस्ता सा फ्रेंडशिप बैंड मिल गया। सी दीज आर इश्यूज which youngsters are facing today, and as a adult, as a family member, as a teacher, you cannot say these are wrong issues, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, because you cannot pass a judgment on anything which happens in the society. ठीक है? For that particular child, this is a real problem. See, आज से 2 साल की बात है, there was a small girl 9th class की थी, she became very violent, बहुत अग्रेसिव होती थी, मार कुटाई करती थी, एब्यूसिव होती थी, गालियां निकालती थी। तो जितनी हमें एक अडल्ट को दवाई देनी पड़ती है उसको शांत करने के लिए, दैट वाज अ डोज जो हमें उसको देते थे। जब वो रिकवर कर गई, ठीक हो गई, काफी ठीक हो गई, तो एक दिन बिल्कुल कंफर्टेबल थी, काम थी। तो उसकी हिस्ट्री क्या थी कि उसकी 9th क्लास पे किसी के साथ फ्रेंडशिप हो गई, किसी लड़के के साथ, और पेरेंट्स ने स्कूल चेंज करा दिया। उसके बाद वो वायलेंट होनी शुरू हो गई। तो उसको मैंने कहा, मैं बात सुनो, आप इतने महीने हो गए, इतने डिस्टर्ब रहते हो, व्हाट इज योर बेसिक प्रॉब्लम, आप इतने परेशान क्यों रहते हो? कहते हैं जो बबलू मेरी बात समझता था ना, वो घर में कोई नहीं समझता। See, this is the reality of life. कहती मैं उससे क्लास में दिल की बात करती थी, लेकिन अब मम्मी पापा से नहीं कर सकती, मेरे घर में दादा दादी उसको नहीं मैं कर सकती अपनी बात। See what has happened is, if you see the last 15-20 years, जो मेच्योरिटी लेवल है, that has gone very high. मैं पीछे कुछ दिन पढ़ रहा था, पिछले 20 सालों के अंदर थ्रू द वर्ल्ड जो IQ लेवल है, इंटेलिजेंस लेवल 10% बढ़ गया है। सी एक जमाना था कि जो जैसे हम पढ़ते थे कॉलेजेस के अंदर, जो नॉलेज थी या पढ़ाई थी, इंफॉर्मेशन थी, इसके 2 सोर्स होते थे, एक थी किताबें, दूसरा था टीचर। इसके अलावा कोई सोर्स नहीं होता था। अगर आपने कोई चीज सीखनी है, मैथमेटिक्स सीखना है, हिंदुस्तान की कैपिटल कौन सी है, चाइना की करेंसी कौन सी है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, देयर आर ओनली 2 सोर्सेस, टीचर्स एंड बुक्स। आज जिस बच्चे के पास एक स्मार्टफोन है, इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, वो दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स है। जितनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज उस फोन के अंदर है, वो दुनिया को कोई टीचर नहीं दे सकता। आज आपने कुछ भी देखना है, अब गूगल के थ्रू जाइए, सब कुछ लिखा हुआ है। आज घर में कोई मैकेनिकल डिवाइस होती है, फोन होता है, लैपटॉप होता है, मशीनरी खराब होती है, तो कौन ठीक करता है? पेरेंट्स ठीक करते हैं, बच्चे ठीक करते हैं, यंगस्टर ठीक करते हैं। जितनी टेक्निकल इंफॉर्मेशन आज यंगस्टर्स को है, उतनी तो उसके पेरेंट्स भी नहीं है। पीछे जैसे डीएमसी के अंदर जो डालमेडी कॉलेज में इतने 100 कंप्यूटर्स हैं,
एक NRI स्टूडेंट आया, ही वॉज एडवाइजर टू ऑल द डॉक्टर्स, उनकी जितनी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व करता था। तो आज जो बच्चा घर में ग्रो करता है वो सोचता है मम्मी पापा को जाते ही, ये तो मुझसे पूछ के हैं। जितने घर में स्मार्टफोन से बच्चे यूज करते हैं और जो पुराने फोन जो कौन यूज करता है, वो कौन यूज करता है घर के पुराने फोन? मम्मी पापा। पीछे क्या हुआ, बच्चे ने ना अपनी मम्मी को गिफ्ट दिया, मम्मी आपका बर्थडे है, ये पापा से पैसे लेके मैं नया फोन लेके आया हूं, मेरा पुराना फोन आप रख लो। जो पॉइंट मैं करने जा रहा हूं कि आज जो यंगस्टर्स की लाइफ है, जो स्टूडेंट्स की लाइफ है, इट इज वेरी डिफरेंट। आज मैं सोचूंगी, आप जो पेरेंट्स सोचे कि मेरे जमाने में होता था, इट हैज नो मीनिंग। सो यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी एट ए गिवन टाइम। हर सोसाइटी की अपनी वैल्यूज जो हैं टाइम के साथ बदलती रहती हैं। सो हम ये नहीं कह सकते कि मेरे जमाने में साइकिल थी तो आप भी साइकिल चलाओ। सो टाइम जो है वो बदलता रहता है। सो जो पॉइंट मैं आपको मैसेज कर रहा था कि लाइफ के अंदर हर स्टेप के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। सो जो आपने फ्रेंडशिप करनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं फ्रेंडशिप ठीक पर्सन से कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। बिकॉज हमारे पास जो आएगा क्लिनिक के अंदर, वो आता है जो फ्रेंड्स धोखा खाता है, यानी फ्रेंडशिप टूट जाती है। ठीक है जी। सो जो मैं स्टेप ले रहा हूं, अगर मैं ड्रग्स ले रहा हूं, अगर मैं अल्कोहल ले रहा हूं, अगर मैं रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा हूं, अगर मैं क्लास को बंक मार रहा हूं, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? दुनिया में जो लाइफ के असूल प्रिंसिपल्स हैं, 1000 साल पहले भी वही थे और आज भी वही थे। सिर्फ पानी में नमक डालोगे, अगर कोई आदमी सोचे कि मैं जितना नमक डालूंगा उतना मीठा होगा, हम क्या बोलेंगे? इसके दिमाग को क्या हुआ है? हाँ जी, इसके दिमाग को क्या हुआ है? इसका दिमाग भी गड़बड़ है। सो ये कभी नहीं हो सकता कि अगर आप घर में खीर बनाओ, उसमें मिर्च डाल दो और बाद में मीठा नहीं हुआ, वो तो मीठा होना ही नहीं। ये तो एक अनपढ़ बंदे की बात पता होती है। सो जो स्टेप आप लाइफ में लेते हो, उसका कॉन्सिक्वेंस आपने ही भुगतना है। ये नहीं होता कि आप पढ़ाई करो तो साथ वाला फर्स्ट आ जाए, ऐसा क्यों नहीं होता? या आप पढ़ाई करना बंद कर दो और साथ वाला फेल हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। सो लाइफ में जो आदमी डिसीजन जैसा लेता है, जैसे एफर्ट करता है, वैसे ही उसकी रिजल्ट आएगी। इसलिए सिंपल सी कैलकुलेशन है, 2 + 2 हाँ जी 4 होता है, और 125 × 325 कितना होता है? 4625। ठीक है, और जो नीचे वाली कैलकुलेशन कितना होता है? 6142860। वेरी गुड। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आज की जनरेशन बड़ी स्मार्ट हो गई है, और जो वॉइस ने ये रिप्लाई दिया, ये इस बात को कंफर्म करता है कि उनकी इंटेलिजेंस स्मार्ट हो गई है और उनके पास स्मार्टफोन्स हैं। आज से बहुत पुरानी बात नहीं है, 20-25 साल पहले अगर आप किसी बच्चे के घर में छोटा बहन भाई हुआ है, उसे पूछो कि कहां से आया, तो पता क्या जवाब होता था? क्या जवाब था? भगवान जी ने दिया। ठीक है जी, खिड़की से आया, रोशनदान से आया। That was the commonest way कि आप एक बच्चे को समझाओगे। आज जो स्कूल का बच्चा 4th या 5th क्लास में पढ़ता है, अगर आप उसको बोलोगे कि ये बच्चा भगवान से आया है, वो सोचेगा मम्मी पापा कुछ हो गया है। सो कहने का मतलब ये है कि आज जो टेक्नोलॉजी के कारण, एजुकेशनल अवेयरनेस के कारण, एजुकेशन जो है उसका जो स्टैंडर्ड है डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। अगर आप बच्चे
बच्चे के पास कोई भी किताब नहीं है, उसके पेरेंट्स बहुत गरीब हैं, बच्चा स्कूल में नहीं रहता, बहुत दूर रहता है, और उसके पास छोटा सा भी लैपटॉप या मोबाइल फोन है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिसको पढ़ के एग्जाम पास नहीं कर सकता। द बेस्ट इंफॉर्मेशन जो है उसके पास अवेलेबल है। सो दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी ने चेंज लाइफ है। ठीक है, सो ये किस चीज की तस्वीर है? वेरी सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, ये जो दो तस्वीरें आपने देखी, लुधियाना जो है हौसले का घर है। जितनी हौसले लुधियाना में बनती है शायद हिंदुस्तान में किसी कंट्री में बनती होगी। अगर आप देखिए किसी भी कपड़े के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? उसकी डिजाइनिंग है, उसकी टेलरिंग है, उसका कलर है, उसका स्टिचेस है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कपड़े के अंदर? आजकल इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। आजकल किसी भी चीज की जो क्वालिटी है वो आपकी क्वालिटी से नहीं देखता, उसके ब्रांड से देखता है। सबसे जीन में जो यंगस्टर डालते हैं, सबसे महंगी जो जीन होती है डीजल की आती है कंपनी की, और जितनी जीन वो फटी होती है, जितने रोशनदान उसमें होते हैं, उतने किसी के अंदर में होते हैं। अगर आप अपने ग्रैंडफादर के पास वो जीन लेके जाओगे, वो सोचेगा किसी भिखारी से लेके आया है। और लुधियाना में डीजल का शोरूम था, एमपीटी मार्केट में बंद हो गया। वहां पे गांव के बच्चे एक हाईएस्ट ब्रांड आता है, 1,10,000 रुपए की जीन रोज खरीदती थी, एक जीन बिकती थी वहां पे। जो 1,10,000 रुपए की जीन में क्या लगा होगा ये आप सोच सकते हो। सो जो मेरा बेसिक क्वेश्चन था कि किसी भी कपड़े के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो उसका फैब्रिक है। अगर आपके पास बेस्ट कपड़े बनाने की मशीन है, बेस्ट टेलर्स हैं, बेस्ट उसकी कलरिंग है, अगर फैब्रिक ही खराब हो गया तो कोई भी सिस्टम उसको एक अच्छा कपड़ा नहीं बना सकता। ठीक है, सो सिमिलरली इंसान के अंदर जैसे मर्जी उसकी शक्ल है, जैसे मर्जी उसकी लुक्स है, जैसे मर्जी उसकी लैंग्वेज है, अगर उसके अंदर जो उसका मन का फैब्रिक है, जो उसका थॉट प्रोसेस है, जो उसकी सोचने की शक्ति है, अगर उसमें कोई वायरस आ गया या वो ठीक नहीं, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको सारी उम्र भुगतने पड़ते हैं। सो जो आज का मेन टॉपिक था कि मॉडर्न चैलेंजेस के अंदर जो वैल्यू सिस्टम है। कुछ साल पहले हमारे अपने प्रोफेशन में शायद बिल्कुल डॉक्टर्स थे जिन्होंने गलत काम से पैसे कमाने शुरू कर दिए। उन्होंने इतने फास्ट कमाने शुरू कर दिए कि जो यंगस्टर्स थे उन्होंने बोला ये रास्ता ठीक है। इम्तिहान में अगर आप नकल मार के लिखना सबसे आसान काम है। अगर पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, रोज पढ़ना है, वो आसान काम थोड़ी है। तो सबको ये लगना शुरू हो गया कि ये सबसे आसान काम है और हमें करना चाहिए। कुछ सालों में उन लोगों ने इतने पैसे कमाए कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आज दोनों कभी जेल के अंदर जाते, बाहर आते हैं, उनकी फैमिली ब्रोकन हो चुकी है, मेडिकल काम उन्होंने बंद कर दिया बिकॉज उनके इतने लीगल केसेस हो गए हैं। और हमने आपस में कई बार डिस्कस किया कि शहर में इतने लाखों लोग हैं जो आराम से सिंपल सी 20-25-30 हजार की इनकम लेते हैं और सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं और जिंदगी को बड़े आराम से, पेशेंस से, बैलेंस वे में जीते हैं। सो जब आपको आसान रास्ता नजर आता है और लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब आपको लगता है शॉर्टकट है, मैं जल्दी इसको अचीव कर लूंगा, वो आपको महंगा ही पड़ता है लॉन्ग टर्म के अंदर। इसी जिंदगी जीना आसान काम नहीं होता।
कॉलेज में आए, कैंटीन में घूमे, गपशप मारी, ये तो सबसे आसान काम है। और जो आजकल कॉलेजेस की फीस बढ़ती जा रही है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाओ, अब थोड़े फॉर्चुनेट हो या पंजाब में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हो, यही पढ़ाई आपको किसी अमेरिकन कंट्री में करनी पड़ जाए या किसी और कंट्री में करनी पड़ जाए, वेस्टर्न कंट्रीज में, जो बच्चे यहाँ से बाहरी कंट्री में जाते हैं, वो फीस इतनी ज्यादा होती है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आज आपने पंजाब के अंदर प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस करनी है, आपको 60-70 लाख लगते हैं। अगर आपने एमबीए करनी है 2 करोड़ पे लगते हैं, वो देता कौन, बच्चे थोड़ी देते हैं, वो उनके पेरेंट्स दे होते हैं। सो जब हम स्टूडेंट्स होते हैं, हमने घर से पैसे मांगने हैं, कपड़े मांगने, सोच चीजें मांगनी है, उसके पीछे पेरेंट्स को स्ट्रगल करनी पड़ रही होती है। जैसे मूवी देखने जाते हैं, हम तो 2 घंटे मूवी देख के आ गए, लेकिन जो मूवी बनाने वाली टीम होती है, उनको उसके पीछे स्ट्रगल करनी पड़ रही होती है। सो लाइफ जो होती है किसी के लिए भी इजी नहीं होती। मैं नहीं कहता कि स्टूडेंट्स की लाइफ बड़ी इजी होती है। जब आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में लगता है कि अरे मुसीबत कब खत्म होगी, कि मुझे डिग्री कब मिलेगी, कब मैं यहां से बाहर जाऊंगा, एंजॉय करूंगा लाइफ। जब आदमी डिग्री लेके बाहर जाता है, फिर मैं स्टूडेंट की जिंदगी याद करता है, यार तब तो बड़ी मस्ती थी, तब तो बड़ा एंजॉय करता था, अब तो मुझे काम करना पड़ रहा है। और मैंने कई बार देखा कि आदमी 10 साल के बाद अपने शहर में अपने स्कूल जुड़ जाएगा, कि अपने वो खुशी वाले दिन जो है वो याद करने की उसको करने की कोशिश करता रहता है। सो जब भी लाइफ में आपको डिसीजन लेना है, आप अपने मन से पूछो। कोई किसी को नहीं बता सकता कि लाइफ में ठीक क्या है, गलत क्या है। पेरेंट्स, टीचर्स या फैमिली मेंबर्स आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे में डिसीजन जो है आपने खुद लेना होता है। ये बड़ी सिंपल सी पिक्चर है। एक आदमी पैदल चल रहा है, दूसरा आपकी बुलेट ट्रेन में जा रहा है। किसकी लाइफ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? जो आदमी बुलेट ट्रेन में जा रहा है उसकी जो लाइफ होती है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सिमिलरली एक आदमी यहां से दिल्ली शताब्दी में जा रहा है, शताब्दी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। उस आदमी की स्पीड क्या होगी? अगर ट्रेन की स्पीड जो है 80 किलोमीटर है, तो जो ट्रैवलर्स बैठे हुए हैं उनकी स्पीड क्या होगी? उनकी स्पीड भी 80 किलोमीटर हुई। सो सोसाइटी के अंदर, हर समाज के अंदर, हर सोसाइटी की अपनी एक स्पीड होती है, अपना एक सिस्टम ऑफ वर्किंग होता है। सो लाइफ में अगर आप चाहते हो कि बड़ी बड़ी सिंपल सी जिंदगी जीनी है, मुझे कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी जीनी है, जैसे कल आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली या पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, कि आपका अपना डिसीजन है कि मैंने जॉब करना है कि मैंने अपना बिजनेस करना है, मैंने टीचिंग का जॉब करना है, मैंने बैंक का जॉब करना है, मैंने क्या करना है। कोई आपको बता नहीं पाएगा, कोई आपको कंपेयर नहीं कर पाएगा। सो जो आपका थॉट प्रोसेस है वही डिसाइड करेगा कि आपने क्या करना है। और जितने भी आप साइकोलॉजिस्ट के व्यूज लीजिए, साइकोलॉजिस्ट थ्योरी पढ़िए, वो कहते हैं जो आदमी सोचता है वही करता है। कल की बात है, कल शाम को मैं फीमेल पेशेंट देख रहा था, शी वाज गुड 45 years old, उसकी छोटी सी बच्ची थी, एक मैरिज में बच्चा हुआ, शी वाज 9 years old, वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड। मैंने हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम सुनी, मुझे लगा बच्चा बेटर हिस्ट्री दे रहा है। हस्बैंड की प्रॉब्लम बताई, वाइफ ने बताई। द गर्ल वॉज वेरी फास्ट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी परसेप्टिव। मैंने कहा कि आप 2 मिनट ठहरी हुई, उसकी बात सुन दीजिए। उसने बड़े प्यार तरीके से प्रॉब्लम को कन्वे किया पेरेंट्स की। तो मदर कहती, डॉक्टर साहब ये ना पुलिस कमिश्नर बनना चाहती है, एंड द गर्ल सेड कि मैं तो पंजाब की ना पुलिस कमिश्नर बनूंगी। ठीक है, सी जैसे जो ट्री होता है, आप कोई भी ट्री देखिए, स्टार्ट फ्रॉम ए सीड। और कहते हैं कि जो थॉट प्रोसेस है वो डिसाइड करता है कि आपने क्या करना है जिंदगी के अंदर, कि आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, आप उल्टे काम करेंगे, सीधे काम करेंगे। सो अदर्स आपको गाइड नहीं कर सकते, अदर्स आपको कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया, जो आपने स्लाइड देखी, लाइफ इतनी इजी नहीं होती, लाइफ में हमेशा
स्ट्रगल्स होती है, लाइफ में प्रेशर्स होते हैं। इवन एज ए स्टूडेंट आपको कितने किस्म के प्रेशर्स होते हैं, वो होते हैं। ऐसे ही लाइफ के हर स्टेज के अंदर जो है प्रेशर जो है वो चलते रहते हैं। सो एंड ऑफ द डे के अंदर ये मैंने डिसाइड करना है या आपने खुद डिसाइड करना है मुझे जिंदगी में क्या करना है। पिछले 10 सालों से आप रोज अखबारों में पढ़ते हो कि पंजाब में ड्रग एडिक्शन का क्या हाल है। हर महीने जितनी हीरोइन पुलिस डिपार्टमेंट पंजाब के अंदर हर महीने पकड़ता है, इतनी हीरोइन सारे हिंदुस्तान में सारे साल में पकड़ी जाती है। और उसका रिजल्ट क्या है कि मेरी क्लिनिक में जितने लड़के एडिक्ट्स आते हैं या जो एडिक्ट्स नहीं भी गांव से आते हैं, एक तो बाल सीधे होते हैं खड़े, जैसे लगाई होती है उन्होंने, और उनके नया ट्रेंड हो गया है कि उनके मसल्स के ऊपर टैटू बने होते हैं। मुझे थोड़ी देर पहले पता ही नहीं टैटू परमानेंट होते हैं, ये तो उतरा ही नहीं है। और जितना कॉर्पोरेट सेक्टर है या आर्मड फोर्सेज हैं वो टैटू में जॉब नहीं देते। और पीछे एक लड़के को कहीं जॉब मिल गई, उसको टैटू हटाना था। टैटू हटाने के लिए लेजर के 1.5 लाख रुपए लगे, लेकिन फिर भी उसका निशान रह गया। और जितने टैटू वाले या बाल खड़े करने वाले या बालों को कलर कर लड़के होते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या करते हो, बड़े रोब से कहते हैं अंकल मैं भेज रहा हूं। और जो बंदा वहां पे सुन रहा होता है ना, तो सोचता है पंजाब में नौकरी का नाम है ये खास ही कोई डीसी की पोस्ट निकली है, इसको वेला कहते हैं। और उसकी जो सिस्टर होती है वो क्या कर रही है, अंकल वो बीडीएस कर रही है, वो गुरु नानक यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ती है, वो पीएम में एमएससी कर रही है। तो तू क्या कर रहा है, तो मैं भेज रहा हूं। और मेरी अपनी असेसमेंट है कि पंजाब के गांव के अंदर 90% जो लड़के हैं, यूथ जो है, वो इसी कैटेगरी की है। और मैंने कई बार गांव में जाता हूँ, कैंप्स वगैरह जाते हैं। अब किसी भी गांव में जाओ, गांव के बाहर 100-200 लड़के बैठे होते हैं एक खाली खेत में और करी जा रहे हैं। और ये आप भी कुछ सोचो कि जिस स्टेट के अंदर मैंने कहता कि 90% लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, लेकिन मेजोरिटी यूथ जो है वो सुबह से शाम तक अनएम्प्लॉयड मोटरसाइकिलों में घूमती है, जीपों में घूमती है, पढ़ाई नहीं करती, काम नहीं करती, अर्न नहीं करती, तो वहां पे उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाओ, जो फर्स्ट 10 पोजिशन होती हैं वो लड़कियों की होती है। लड़कों की 11वीं से शुरू होती है। मैं लड़के को बोला दयानंद में, मैं डीएमसी में 20 साल सर्विस करता था। मैं कह क्या बात है, तुम लोग पढ़ते कम है? कहता अंकल लड़के हमारे लिए पढ़ते नहीं, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, वो पढ़ तो रही है हमारे लिए। जब पढ़ेगी काम करेंगे तो फायदा किसको होने वाला है, हमें होने वाला है। आप कई बार सोचते हो, पेरेंट्स मुझे देखते हो, और एक ग्रैंडफादर ने मुझे कहा, कहता डॉक्टर जिस घर का बच्चा एडिक्ट हो जाता है, ग्रैंड पेरेंट्स शुगर 15 साल कम हो जाती है। कहते मदर की उम्र तो 20 साल कम हो जाती है। तो सारी रात जागती रहती है, बच्चे चोरियां करके ले जाते हैं। पीछे हफ्तों में लड़का दिखाने आए, परसों की बात है, उसकी मदर कहती है डॉक्टर आपको पता है पंजाब में जो हीरोइन यूज होती है उसकी कॉस्ट क्या है। जब 1 ग्राम हीरोइन है उसकी कॉस्ट कितनी है, मार्केट में क्या रेट है उसका, कितना जी? 2500 कितने का है? तो मार्केट में जो 1 ग्राम हीरोइन है वो 2500 से लेकर 3000 में आती है। और अक्सर जो यंगस्टर्स हैं वो 1 से 2 ग्राम हीरोइन रोज इस्तेमाल करते हैं। अगर 10 मरीज हीरोइन के आते हैं उसमें एक होता है जो अपने पैसे यूज करता है, बाकी वाले पैसे होते ही नहीं। और अब पूछने बंद कर दिया कि तुम 1 लाख 2 लाख महीना कहां से लाते हो।
उस लड़के की मदर ने बताया कि डॉक्टर साहब हमारी पिछले महीने मेरी बेटी की शादी थी, बारात गेट पे थी और ये अपनी सिस्टर के जेवर लेके खा रही। मेरे पेशेंट के फादर की डेथ हुई, ही वाज ए हेरोइन एडिक्ट। मलेरकोटला में उसका संस्कार था। जो फादर को अंडे दिलाने का टाइम आया, वो भाई साहब वहां पे थे ही नहीं। उसकी सिस्टर ने उसकी आग लगाई और जब वो लोग वहां से बाहर निकले, देखा वो एक कार के अंदर इंजेक्शन लगा के सोया हुआ था। सो मैं कई बार सोचता हूं कि ये जो यंगस्टर है, जो 20-22 साल का है, जो कि कॉलेज में होना चाहिए था, ये जॉब करते होना चाहिए था, ये 3-4 हजार रुपये रोज नशा करता है। और आज पंजाब के अंदर कम से कम 22-23 हजार यंगस्टर जो है उन्होंने जेल में डाले हुए हैं, तो नशा करते हैं। सबसे प्रॉब्लम कहां पे शुरू हुई? द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट डे, जब उसने उस नशे को इस्तेमाल किया। जब उसने नशे को इस्तेमाल किया, उसको अच्छा लगा, उसको मस्ती लगी, अगले उसने फिर किया। और सबसे मैंने कॉमन देखा है कि जितना कॉन्फिडेंस ये नशे वालों में होता है ना, किसी में नहीं होता। उनमें इतना कॉन्फिडेंस होता है, और डॉक्टर साहब जो हम कभी भी छोड़ दें, ये तो मैंने फैसला ही नहीं किया, जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया ना, फिर देखना आप, फिर तो ना मुझे दवाई की जरूरत पड़नी है, मैं खुद ही छोड़ दूंगा। अभी तुम कितने देर से नशा कर रहे हो? तो 4-5 साल से कर रहा हूं जी। तो मैं छोड़ते क्यों नहीं? कहता मैं डिसाइड नहीं किया। ये तो मेरी मामूली बात है। सो एक आदमी गलत स्टेप लेता है, ऊपर से उसकी सोच गलत हो जाती है। और जो मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि जो हीरोइन एडिक्ट है, उसकी लाइफ 4 से 5 साल चलती है। उसको इतना बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, जैसे अभी किसने बताया कि हीरोइन 2,500 रुपए की आती है। साल पहले हीरोइन का क्या रेट था? पंजाब में साल पहले जो हीरोइन का रेट था वो था 700-800 रुपए ग्राम। जैसे बदली रेटा महंगा हो गया, हीरोइन महंगी हो गई। और मेजोरिटी जो हीरोइन एडिक्ट हैं, तो हीरोइन मिलती नहीं है, काम मिलती है, उसको इंजेक्शन लगाते हैं, खुद बनाते हैं, खुद इंजेक्शन निकालते हैं। किसी को एडिक्ट से पूछो, बच्चे कितने यार दोस्त मर गए हैं? कहता कल 4 तो मर गए। नबी कैसे मर गए? कहता एक ने सुसाइड कर ली, एक को किसी ने मार दिया, 2 कहता है सोए से मर गए। मैं भाई तू तो इंजेक्शन लगाता है, ना तू मुझे कुछ नहीं रहेगा। उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही बढ़ा है, यानी उसका दोस्त उसके सामने मर रहा है, लेकिन उसका इतना कॉन्फिडेंस है। बिकॉज जो ड्रग्स होती है, जो नशा होता है, आप सब लोग जरा साइंस के स्टूडेंट्स होते, मैडम साइंस के स्टूडेंट्स हो, जो हमारा फ्रंटल लोब होता है ब्रेन का, वो सोचता है। जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट में सारी एक्टिविटीज डिवाइडेड होती है, पढ़ाना किसने है, ब्लड किसने काम करना है, अटेंडेंस किसने लगानी है, ब्रेन का काम डिवाइडेड है। जो फ्रंटल लोब है वो हमारा सोचता है, डिसीजन लेता है, हमने क्या करना है क्या नहीं करना। जो एनिमल्स होते हैं उनमें फ्रंटल लोब बहुत कम होता है। तो जो हमारी उम्र बढ़ती है, क्योंकि फ्रंटल लोब का जो साइज है बढ़ना शुरू हो जाता है, बिकॉज लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। लेकिन जो लोग ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, नशा करते हैं, चरस का करते हैं, हेरोइन का करते हैं, उनके फ्रंटल लोब के जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे डेड और हो जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। उसके सामने बंदा मर रहा है, उसके सामने एक बंदा अरेस्ट हो रहा है, वो खुद भी 2 बार जेल में जा चुका है, लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं आती कि जो मेरा एक्शन है उसका रिजल्ट क्या होगा। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पंजाब में देयर वाज अ टाइम कि आर्मड फोर्सेस के अंदर थ्रू आउट द वर्ल्ड जो पंजाबी नौजवान थे वो सबसे स्ट्रांग समझे जाते थे। और आज इवन आप पंजाब के जो गांव के बच्चे भी देखोगे, अब उनकी अगर शक्ल देखो, उनकी आप शेर देखो, और वो खुद ही एक ना पंजाबी हूं, बंदा कहता पंजाबी है, अदरवाइज शक्ल से नहीं लगता। तो चाहे नशे की बीमारी है, चाहे आप क्रिमिनल ओरिएंटेड होते हो या गलत काम करते हो,
या जिंदगी में गलत स्टेप लेते हो, ये हमेशा स्टार्ट होता है पहले विचार के साथ कि आपने क्या करना है। सो आदमी ये नहीं कह सकता कि मुझे दोस्त ने नशा करा दिया, मुझे गलत काम किसी ने करा दिया, मुझे धक्का जिंदगी में लग गया। सो जिंदगी में जब भी आप सड़क पर ड्राइव कर रहे होते हो, वहां पे रेड लाइट होती है, येलो लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, ठीक है ना। सो लाइफ में व्हेनेवर यू टेक एनी स्टेप, ऑलवेज देयर इज अ मैसेज फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर ब्रेन कि गलत है कि ठीक है, करना है कि नहीं करना। सो आई थिंक यंगस्टर्स में क्या इश्यूज होते हैं, यंगस्टर्स में हार्मोन्स लेवल बहुत स्ट्रांग होते हैं, बिकॉज दैट इज द एज व्हेन ऑल हार्मोन्स एट द पीक लेवल पे वर्किंग करते हैं। और जब हार्मोन स्ट्रांग होते हैं ना, माइंड का लॉजिक फेल हो जाता है। तभी कहते हैं कि यंगस्टर्स को समझाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लॉजिकल सोचता नहीं। हिज ब्रेन इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द केमिकल्स एंड हार्मोन्स जो उस एज के साथ लिंक होते हैं। तभी आदमी कलर डिसीजन लेता है, तभी आदमी इरेशनल डिसीजन लेता है, बिकॉज उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो उसके समझ में नहीं आते। बट आई थिंक जैसे ये ऑडियंस है, ये तो सबसे इंटेलिजेंट ऑडियंस है बनाने की, सबसे पढ़ी लिखी और सबसे इंटेलिजेंस, बिकॉज दिस इज ए मेन यूनिवर्सिटी। बाकी कॉलेजों में क्या होता है, कितनी पढ़ाई होती है आपको बताइए। सो जो इंटेलिजेंस ऑडियंस है, ऑब्वियसली दे विल टेक इंटेलिजेंट डिसीजंस। और मैंने अपनी लाइफ में देखा है, ऐसा कोई नहीं होता कि अमीर का बच्चा जो है ज्यादा प्रोग्रेस करेगा, जो गांव से आया वो प्रोग्रेस नहीं करेगा। मैंने यहां पे अपनी प्रैक्टिस में कितने में लोग देखता हूं जो बिहार से आए, 20 साल पहले आए, वो लेबरर्स थे, आज उनकी अपनी फैक्ट्रीज हैं। इसे कुछ दिन की बात है, एक बिहार का मतलब जब वाइफ खाने आया, मुझे आप क्या करते हो? कहते जी मैं ठेकेदार, मैं छोटे बड़े ठेकेदार होगा। कहते किस चीज का ठेका रहते हो? जी मैं बिल्डर हूं। जो छोटे मोटे 100-200 गज के दुकान बनाता होगा। मैंने क्या बिल्डिंग बनाते हो? कहता जी मैं तो इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्सेस बनाता हूँ। कहता जी उस साल की फैक्ट्री में जा रहा हूँ राजपुरा में। मैं भाई तुम्हारा ऑफिस क्या है? उसने बताया कि कहता जी यहाँ पे दीपक बिल्डर्स हैं, बहुत बड़े बिल्डर्स हैं लुधियाना के, उनका ऋषि नगर में 7 की बिल्डिंग में तो मेरा ऑफिस है। कहता ऐसा 16 साल पहले आई वॉज ए लेबरर इन लुधियाना। इस हाथों के साथ मैंने मिट्टी में ईंटें उठाई हैं, अपना मैंने काम किया है। लाइफ में गिव अपॉर्चुनिटीज टू एवरीबॉडी। जब बरसात होती है, रेनफॉल होती है, तो बराबर होती सबके लिए। सो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज हर इंसान के पास होती है, हर इंडिविजुअल के पास होती है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को आपने यूज कैसे करना है, रास्ता कौन से लेना है, वो डिसाइड होता है। जैसे आप स्टेशन पे गए, मेरा लिस्ट होती है, ये ट्रेन दिल्ली जा रही है, पटियाला जा रही है, यहां जा रही है, आपने कहां पे जाना है, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। अब मैं सारा लेक्चर खत्म करना चाहता हूं। जो रास्ते हमें इजी लगते हैं, हमें लगता है फैसला बड़ा आसान है, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, मैं सेट हो जाऊंगा। जैसे आपने बीएससी करी, काफी लोग सोचते हैं कल मैं एक क्लर्क की नौकरी कर लेता हूं बैंक में, या सरकारी नौकरी कर लेता हूं, पैसे बहुत मिलते हैं, पढ़ाई करके मैंने क्या करना। लेकिन जो बच्चा एमएससी करेगा या जो पीएचडी करेगा, उसका लेवल डिफरेंट होगा। लेकिन उस लेवल पे जाने के लिए उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एक मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आपने अगर बीएससी करके कॉलेज छोड़ दिया तो 2 साल नौकरी कर ली, हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम नहीं है कि आप पीएचडी दोबारा कर पाओगे। एक बार आप नए स्ट्रीम से बाहर आ गए, दोबारा यहाँ एंटर करने में फिर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, दोबारा आप एंटर नहीं कर सकते। सो आपने अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में सोचा कि मैं तो जल्दी छोड़ देना है, सो चांसेस आपके सक्सेस के उस लाइफ में कम हो जाएंगे, उस एरिया के अंदर। लेकिन अगर आपने सोचा कि मैंने तो 5 साल और लगाने हैं, मैंने 8 साल और लगाने हैं, तो आपके जो चांसेस हैं वो सक्सेस के जो है वो बढ़ जाएंगे। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतनी अटेंटिव ऑडियंस थी। मैडम ने मुझे पहले एक वार्निंग किया था कि नॉटी ऑडियंस है। मैडम कहते थे साइंस के स्टूडेंट है तो साइकोलॉजी तो थोड़ी है ना,
अभी इनकी इतनी ट्यूनिंग नहीं होती, लेकिन मुझे बड़ी अटेंटिव ऑडियंस लगी, बड़ी इंटेलिजेंट ऑडियंस लगी। और मुझे नहीं पता था कि कुछ लड़के कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। सो आज के दिन में the one thing I want to convey is whenever you want to take a decision of relationship, of career, any decision, हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट ऐसी होती है कि हम जल्दी डिसीजन लेते हैं, हम अंडर इमोशन डिसीजन लेते हैं। और जब शहर में बारिश होती है तो मोटरसाइकिल की ब्रेक या स्कूटर की ब्रेक फेल हो जाती है, ऐसे ही अंडर इमोशंस लॉजिक काम नहीं करता। सो जब भी आप अंडर हाई इमोशन डिसीजन लेते हैं, चांसेस ज्यादा है कि वो डिसीजन अंडर द लाइफ में गलत होगा, बिकॉज आपने लॉजिक काम नहीं किया, आपने अंडर इमोशन डिसीजन किया, अंडर एक्साइटमेंट को डिसीजन किया। जैसे आप लोगों जिसका गुस्सा आया हुआ है वो करेगा, हो सकता है अदरवाइज ना करे। सो ऑल ऑफ अस आर ब्लेस्ड इंडिविजुअल्स, वी हैव इंटेलिजेंट ब्रेन्स, सो वी मस्ट यूज आवर कॉशन टेकिंग एनी डिसीजन, वेदर इज द राइट डिसीजन or a wrong decision in career, in relationship, in education. जिंदगी में कोई भी सुनिश्चित कोई कारण है। I am very thankful to you. I enjoyed this presentation. I'm very happy, very thankful. I enjoyed this program. Thank you very much.